हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਟਾਲਿਸਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਹੀਟਰੋਜੀਨਸ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਟਾਲਿਸਟ। ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ, second are negative catalysts, and third are auto catalysts। ਇਹ 3 ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆਫ ਅਮੋਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਇਰਨ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2NH3 this is a example of positive catalysis ਜਾਂ positive catalyst। ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and this process is known as Haber process। negative catalyst ਦੇਖੋ, ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ H2O2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ। ਇਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਹੈ decomposition of hydrogen peroxide। this is hydrogen peroxide। देखो जी हाइड्रोजन peroxide ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ H2O+O ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਿਸਰੀਨ ਦੀ ਐਡ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਿਸਰੀਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗਲਿਸਰੀਨ ਔਰ ਗਲਿਸਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਸਰੀਨ ਆ ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਦੀ ਫੋਟੋਲਿਸਿਸ ਤੋਂ। ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਫੋਟੋਲਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦਾ ਫੋਟੋਲਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਸਜੀਨ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੋ ਕੈਟਾਲਿਸਟ। ਆਟੋ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ KMnO4, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ KMnO4 ਵਿਦ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। is the rate of oxidation of oxalic acid by acidified KMnO4। ਇਹ KMnO4
द रिएक्शन है, मैं इतने लिख देना रिएक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विद KMnO4। हुण KMnO4 एसिडिफाइड यूज करना है। एसिडिफाइड का मतलब है ਇਹ थोड़ी जी अमाउंट जी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जी यूज होती है। एसिडिफाइड डाइल्यूट H2SO4, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 is used to acidify KMnO4. KMnO4 is potassium permanganate solution। रिएक्शन है ऑक्सैलिक एसिड का KMnO4 के नाल, जो ही असी एसिड पा के रिएक्शन देने हैं रिएक्शन एकदम फास्ट हो जाता है। हुण कोई एक्सटर्नल कैटालिस्ट यूज नहीं किया गया। रिएक्शन जिहड़ा एसिडिफाइड KMnO4 है यह सैल्फ कैटालिस्ट का काम करता है। ऑटो का मतलब अपने आप, ये रिएक्टेंट्स ने यही सैल्फ कैटालिस्ट का काम करते हैं और रिएक्शन फास्ट हो जाता है, काफ़ी फास्ट हो जाता है। यह ऑटो नैगेटिव तो पॉजिटिव, ठीक है। इन्हें तीन टाइप्स जी ने वो कैटालिस्ट दियाँ होंदियां ने। ਇਹਦੇ 'ਚ कुछ फीचर्स अगे आ जाते हैं। फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट देखो थ्योरेटिकल काम है, फीचर्स जोड़े ने थ्योरेटिकल वर्क है। ये मैं थोड़ा थोड़ा तो दस दाँगा क्योंकि ये कुछ चीज़ां जड़ियां ने वो सिंपल ने पढ़ने वाली, करना सारे ने। ये फीचर्स गल आ जाती है कि जोड़े कैटालिस्ट ने ये आम तौर पर जो रिएक्शन के पार्टिसिपेट करते हैं तो अनचेंज निकल जाते हैं, इन्हों कोई चेंज नहीं आता। पहला फीचर तो यही आ जाता है। फिर ये रिएक्ट जोड़े कैटालिस्ट होंगे ने इन्हों की बड़े सिलैक्टिव इन नेचर होंगे ने। सिलैक्टिव इन द केस की इन द सेंस कि रिएक्टेंट्स जोड़े ने इन्होंने चूज किए होंगे कि यह रिएक्टेंट है तो पर्टिकुलर यही कैटालिस्ट जो यूज होएगा तो रिएक्शन जो फ्रूटफुल होएगा, ठीक है। ये हैडिंग्स जोड़े ने ये आ जाते हैं ये अंडर सिलैक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, ये सेरियंट फीचर ने। ये एक टर्म आएगी पॉइजन। हुण देखो पॉइजन इत्थे कैमिकली एक सेंस है। पॉइजन कुछ कैटालिटिक एक्टिविटी इस तरह की होंदी है जड़ी कि बहुत फास्ट रिएक्शन चला जाए तो रिएक्शन खराब हो जाता है। हुण तुसीं टाइप की नैगेटिव कैटालिस्ट की कि नैगेटिव कैटालिस्ट रिएक्शन रेट को घटाते हैं, पर जे मान लो मजबूरी है साड़ी कि असी कैटालिस्ट जिहड़ा है वो वाला यूज़ करना जिहड़ा पॉजिटिवली रेट ऑफ रिएक्शन वधावे, पर लेकिन रिएक्शन स्लो डाउन चाहिए सानू। कैटालिस्ट वो यूज़ होना जिहड़ा कि पॉजिटिव कैटालिस्ट है उन्हें रेट ऑफ रिएक्शन वधाना है, पर सानू रिएक्शन स्लो डाउन चाहिए, फिर ही रिएक्शन ठीक होएगा। अदरवाइज रिएक्शन ठीक नहीं होएगा, उहदे जिहड़े ने रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट बनने ने वो ठीक नहीं बनणगे। उन्हां केसिस दे विच एक्सटर्नली एक कैमिकल यूज़ किया जाता है जिन्हों पॉइजन का नाम दिता गया। यह पॉइजन करता की है? पॉइजन इज यूज्ड फॉर द सबस्टांस which lowers the catalytic activity of a catalyst. Poison lowers the activity of a catalyst, and this phenomena is known as poisoning. And we see poisoning का नाम दिता गया, poisoning of catalyst। पॉइजनिंग हो जाती है, वो रिएक्शन स्लो डाउन कर देंगे, ठीक है। इस तरह दी टर्म्स जड़ियाँ ने इन्हों के फीचर्स के विच आनियां ने, यह तुसीं आप स्टडी करनियां ने, कोई खास काम नहीं है। ये नैक्सट जिहड़ा पोर्शन है वो आ जाता है, ये एक प्रमोटर। मैं एक होर टर्म तुहानूं दस रहा हाँ, प्रोमोटर्स। देखो प्रमोटर्स जिहड़े ने वो
जिस तरह पॉइजनस या पॉइजनिंग जी है वो स्लो डाउन करती है जड़ा कैटालिस्ट है उसकी एक्टिविटी को प्रमोटर्स जोड़े ने प्रमोट करते हैं इट प्रमोटर्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ कैटालिस्ट जोड़े प्रमोटर्स ने ਇਹ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ Next topic is enzyme catalysis. काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखो पहले तो पता होना चाहिए एंजाइम है कि हुण बायोलॉजी के नाल रिलेटेड है एंजाइम इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन दिस इज ए type of protein produced by living cells which catalyzes the biochemical reaction in a living system. A living cells जिहड़े ने body जिहड़ी है वो living cells तो बनी है इन्हां दे biology हर कोई जानता है वो एंजाइम सक्रीट करते हैं या उन्हां दे विच एंजाइम बनते हैं एंजाइम की नेचर ग्लोबुलर प्रोटीन दी है प्रोटीन एक टाइप है वन ऑफ द टाइप and these catalyzes the biochemical reaction या इन्हों असी सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जड़े कि बायोकेमिकल रिएक्शंस नू फास्ट करते हैं दीज आर एंजाइम्स ठीक है एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स एंड increases the rate of reaction of biochemical reaction. ਹੁਣ there are present so many reactions बहुत reactions ने ਜਿਹੜੇ कि एंजाइम की प्रेजेंस होंगे ने उन्होंने एक कॉमन रिएक्शन जोड़ा है वो इनवर्जन ऑफ शुगर है कन्वर्जन ऑफ माल्टोस स्टार्च इनटू माल्टोस है यह रिएक्शन जोड़े ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आ जाने ने फिर कन्वर्जन ऑफ माल्टोस टू ग्लूकोज है बड़े ही रिएक्शंस ने जोड़े कि एंजाइम की एक्टिविटी के नाल होंगे ने मैं कुछ रिएक्शंस जोड़े ने लिखदा दैट इज़ इनवर्जन ऑफ शुगर इनवर्जन ऑफ शुगर के जोड़ा वो केन शुगर की असी गल करते हैं केन शुगर इज सुक्रोज C12H22 O11 दी हाइड्रोलिसिस है यह फर्मेंटेशन रिएक्शन है दी हाइड्रोलिसिस है H2O के नाल रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज एंजाइम का नाम दिस इज सुक्रोज या केन शुगर देख सकते हो यह तोड़ देंदा है इनवर्टेज सुक्रोज नूं तोड़ देंदा है काहदे च इट ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दैट इज C6H12O6 प्लस C6H12O6 ਇਹਦੇ ਚੋਂ एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है दोवां दे देखो फॉर्मूले जोड़े ने वो सेम ने पर लेकिन इन्हों की स्ट्रक्चर जी डिफरेंट होंगी है ग्लूकोज जोड़ा वो एल्डिहाइड ग्रुप होंगे फ्रक्टोज जोड़ा वो कीटो ग्रुप होंगे दिस इज एल्डोसिस दिस इज कीटोसिस इनवर्टेज एंजाइम्स की जी प्रेजेंस के रिएक्शन होंगे हुण इस तो इलावा होर भी बड़े रिएक्शंस ने जोड़े कि इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स जोड़े ने होंगे ने
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਮਿਲਕ ਇਨਟੂ ਕਰਡ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਮਿਲਕ ਇਨਟੂ ਕਰਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਕਟਿਕ ਬੈਸਿਲਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੈਕਟਿਕ ਬੈਸਿਲਾਈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਇਨਸਾਨੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਕ੍ਰੀਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਟਮਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਾ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 40 ਈਅਰਸ ਲੱਗਦੇ, 40 ਸਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟਮਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਕਿ 4 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ 4 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਵੇ, 40 ਈਅਰਸ ਲਈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੀਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 40 ਸਾਲ ਲੱਗਣ। ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਇਨਵਰਟੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਔਰ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇਚਰ। ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇਚਰ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, C12H22O11 ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਵਰਟੇਜ਼। ਇਨਵਰਟੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, C6H12O6 plus C6H12O6, that is glucose ਤੇ fructose, that was cane sugar और sucrose, ਖੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਵਰਟੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਡਾਇਸਟੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਟੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ, that is NH2C+O NH2. This is urea. This is example of urea. The hydrolysis है H2O
ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ यूरेस ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ यूरिया ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ यूरिया ਗੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਅਮੋਨੀਆ NH3 plus CO2 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ यूरेस। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਓ यूरेस ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਰੋਮੇਟੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ ਔਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇਚਰ ਆਫ एंजाइम, ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦਾ। एक गल होर याद रखो, जिन्हां दे नां दे पिछे ASE लग रहा है मोस्टली, सारे नहीं मैं कहता, मोस्टली एंजाइम 95% या 97% एंजाइम्स दे नां दे मगर ASE लगता है, जिस तरह इनवर्टेस ASE ਇਹਦਾ सुफिक्स है, यूरेस ASE, माल्टेस, ठीक है। इस तरह के बड़े जाइमेस सारे एंजाइम्स के नाम ने, जिस तरह जाइमेस, माल्टेस, यूरेस, इनवर्टेस, हरेक के नाम के पिछे ASE लगता वो लग रहा है। ASE ये एक तरह की पछाण होंदी है कि तुसी रिकगनाइज कर लो कि यह चीज़ जी है वो एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज मोस्ट हाईली एफिशिएंट, इन्हां दी एफिशिएंसी जिहड़ी है बड़ी ज़बरदस्त होंदी है। नैक्सट प्रॉपर्टी इज मोस्ट हाईली एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब है या एफिशिएंसी का मतलब है काम करने की समर्था, एबिलिटी टू डू वर्क। जी इन्हां दी ये जिहड़ी पावर है या इन्हां कोल कि इन्हां दी जिहड़ी यह प्रॉपर्टी है ये बड़ी ही ज़बरदस्त है। मैं हुणे तुहानूं एग्जाम्पल दी कि एक टाइम का मील जिहड़ा उन्होंने डाइजैसट करने वास्ते 40 ईयर लगते हैं तो एंजाइम रिएक्शनस इन्ना फास्ट कर देंगे है। यह रिएक्शन की जिहड़ी एफिशिएंसी है और 10⁻10 to 10⁻20 टाइम्स रिएक्शन फास्ट करते हैं, ये याद रखियो। 10⁻10 काफ़ी ज़्यादा है, 10⁻20 टाइम्स रिएक्शन वो फास्ट कर देंगे। स्पैसीफिक नेचर, बड़ी स्पैसीफिक नेचर है, हाईली एफिशिएंट, बड़ी एफिशिएंसी जबरदस्त है जी है। ये जी बुक ने उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन है, कार्बोनिक एसिड तो जड़ा ब्रेकडाउन है जड़ा कार्बोनिक एसिड है, तो जे असी इनू एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन कर दें, इनू एंजाइम की फॉर्म से जो एंजाइम है एज ए कैटालिस्ट यूज होंदा है, तो 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स जिहड़े ने कार्बोनिक एसिड के जिहड़े वो 1 मिनट दे विच ब्रेकडाउन उन्हां दा हो जाता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 दा ब्रेकडाउन है, इन्हें ब्रेकडाउन होना किवें, जिहड़ा H2CO3 दिस इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बनता किवें, कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर दे मेल तो कार्बोनिक एसिड। हुण कार्बोनिक एसिड जे टुटेगा तो की बनेगा, H2O ते कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यह हुंदा किहदी प्रेजेंस दे विच है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, फिर ASE पीछे आ गया, एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स जिहड़े ने दा ब्रेकडाउन होंदा है पर मिनट, 1 मिनट दे विच 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन है पर मिनट। अदरवाइज रिएक्शन बहुत जोड़ा वो स्लो होंदा, स्लो रिएक्शन होएगा, पर लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस रिएक्शन इन्ना फास्ट हो जाता है कि इन्ने बड़े जोड़े मॉलिक्यूल्स ने उन्हों का ब्रेकडाउन जोड़ा वो हो जाता है, ठीक है। स्पैसीफिक नेचर ये स्पैसीफिक ने। हुण देखो मैं स्पैसीफिक नेचर की तुहानूं एक होर एग्जाम्पल दे देना कि
ह्यूमन बॉडी जिहड़े है वो पट्ठे नहीं पचा सकती। पट्ठे सिर्फ जिहड़े ने वो पशुओं ने खाने हुंदे ने, वो पशुओं का खाना, ठीक है। जिहड़े पट्ठे हुंदे ने, जिहड़ा कैटल फीड जिन्हों असीं कहने हैं, पट्ठे जिहड़े ने इन्हां नूं डाइजैसट करने वास्ते एक एंजाइम है सैलूलेज। सैलूलेज एंजाइम ਸਕਰੀਟ होएगा तो पट्ठे डाइजैसट होणगे, अदरवाइज पट्ठे डाइजैसट नहीं होणगे। तो ह्यूमन बॉडी सैलूलेज एंजाइम ਸਕਰੀਟ नहीं करती। सैलूलेज ना ਸਕਰੀਟ होने करके ह्यूमन बॉडी पट्ठे डाइजैसट नहीं कर पाती। स्पैसीफिक होगी नेचर, ठीक है। डाइजेशन फास्ट हो जाती है 10⁻10 to 10⁻20 टाइम, हाईली एफिशिएंसी। यह छोटी छोटी एग्जाम्पल्स नाल तुसीं जिहड़ा वो इन्हां नूं याद रखना। फिर आ जाता है नेक्स्ट फीचर इज हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर हुंदा जिहड़ा लोड़ींदा टेम्परेचर होवे, उस चीज़ां पर्टिकुलर टेम्परेचर के उत्ते वर्क करदियां बिल्कुल ठीक। एंजाइम्स की भी वही कैटेगरी आ जाती है। एंजाइम जिहड़े ने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बिल्कुल सही वर्क करते हैं। यदि एग्जाम्पल तुसीं ऐसा याद रखो कि मान लो तुहानूं फीवर है, बुखार चढ़ाया, तुसीं डॉक्टर को जाते हो, मैडिसिन लैंदे हो, फिर तुसीं खाण बारे पुछदे हो, तो जो मान लो तुसीं बीमार होवो या बुखार चढ़िया होवे, तुहाडी बॉडी का टैंपरेचर जिहड़ा वो हिलिया हुंदा है। डॉक्टर तुहानूं कभी भी हैवी फूड खाण का रिकमेंड नहीं करेगा। वो कहेगा लाइट तो लाइट खाना खाओ, तुसीं भी लाइट खाना खाओ। कारण की है कि बॉडी टैंपरेचर जिहड़ा वो स्टेबल नहीं हुंदा, जिहदे करके एंजाइम की एक्टिविटी जिहड़ी है वो डिस्टर्ब होई हुंदी है। दैट इज़ वाई कि उस वेले कहते हैं कि लाइट फूड खाओ, क्योंकि तुहाडे एंजाइम की एक्टिविटी भी जिहड़ी है वो प्रॉपर नहीं है। क्योंकि एंजाइम का ऑप्टिमम टैंपरेचर के उत्ते ही उन्हें सही फंक्शन करना है। जे टैंपरेचर बॉडी का उत्ते थले हो जाएगा, एंजाइम का एक्शन सही नहीं होएगा, तो डाइजेशन भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इस तरह की एग्जाम्पल्स जिहड़ियां ने वो तुसीं याद रखनियां ने। फिर फोर्थ इज हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम पीएच। कुछ एंजाइम जिहड़े ने उन्हां दा पीएच जे एसिडिक होएगा फिर वो ठीक तरीके नाल एक्ट करनगे। कुछ एंजाइम्स इहो जिहे हुंदे ने जिन्हां दा पीएच बेसिक वाल तुर जाए फिर वो एक्टिव हुंदे ने, ठीक है। इत्थे एग्जाम्पल आ जाती है कि प्रोटीन डाइजैस्टिंग एंजाइम है स्टमक दे विच प्रोड्यूस हुंदा है, तो उसका ऑप्टिमम पीएच जिहड़ा वो 2 दा होवे, ठीक है। पेप्सिन दिस इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो यह पीएच जिहड़ा है वो 2 के करीब पीएच होवे। जे 2 पीएच है इसका मतलब नेचर किहड़ी होएगी, पीएच 2 होवे स्टमक का एसिडिक मीडियम दे विच एंजाइम पूरी तरह वधिया फंक्शन करता है। पीएच बारे पता ना, 7 जो न्यूट्रल है, 0 तो लैके 7 तक जो एसिडिक है, 7 तो लैके 14 तक जो अल्कलाइन मीडियम शुरू हो जाता है, बेसिक मीडियम शुरू हो जाता है। तो एक होर एंजाइम होंदा ट्रिप्सिन। हुण इन्हां दे नाम दे पिछे ASE नहीं जेगा, मैं तुहानूं कहा सी मोस्टली ज़्यादा जिहड़ा वो सुफिक्स जिहड़ा ASE हुंदा। हुण इन्हां दे पिछे नहीं हैगा, कुछ इहो जिहे भी हुंदे ने जिन्हां दे नाम पिछे नहीं हुंदा। हुण ट्रिप्सिन है, हुण यह भी एक प्रोटीन डाइजैस्टिंग एंजाइम है, पर इनू पीएच जिहड़ा वो 8.5 के राउंड अबाउट जिहड़ा वो मिल जाए या होएगा, तो फिर इन्हां दी एक्टिविटी जिहड़ी है वो ठीक होएगी। कहने का मतलब कि ऑप्टिमम पीएच भी चाहिए कि जे एसिडिक जे पेप्सिन है तो वो वास्ते एसिडिक मीडियम चाहिए है,
जे ट्रिप्सिन प्रोड्यूस होना या ट्रिप्सिन ने करने दोवां ने प्रोटीन डाइजेस्ट है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ pH ਜਿਹੜਾ 8.5 है दैट इज अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ बेसिक मीडियम ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ अल्कलाइन मीडियम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ दैट इज ऑप्टिमम pH ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇਚਰ ਹਾਈਲੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ऑप्टिमम टैंपरेचर के उत्ते है ऑप्टिमम pH के उत्ते इन्हां दी एफिशिएंसी पूरी है ठीक है नेक्स्ट फीचर इज फिफ्थ फीचर है कि इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स इंक्रीजिंग एक्टिविटी by coenzymes ਇਹ ਵੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਮੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ या कुछ मेटैलिक आयन्स ने जड़े वो भी कोएंजाइम का काम करते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम मैग्नीज Na पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव ऑल दीज आर एक्ट एज कोएंजाइम्स ते एक्टिविटी को एनहांस करते हैं ठीक है ये कुछ प्रॉपर्टीज सीगियां जिहड़ियां कि एंजाइम्स दियां सीगियां इन्हां बारे थोड़ी जी नॉलेज होनी जरूरी सी हुण इहदे च अगे आ जाना कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जिस तरह तुसीं मैकेनिज्म एडजॉर्प्शन का किया सीगा उस तरह एंजाइम एक्शन का भी जिहड़ा मैकेनिज्म आएगा कि एंजाइम आफ्टर ऑल काम किवें करदा है तो कैटालिस्ट है जिस तरह कैटालिस्ट सीगा वो कैमिकल सी प्रॉपर कैमिकल रिएक्शन दे विच वो प्रॉपरली जिहड़ा वो पहले रिएक्टेंट नाल रिएक्ट करदा सीगा एक तुसीं दो थ्योरीज पढ़ियां सीगियां एक एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी सीगी एक मैं तुहानूं करवाई सीगी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी उस तरह ही एंजाइम एक्शन जो होंदा है यह भी तकरीबन उस तरह ही होंदा है यदा भी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के विच लॉक एंड की मैकेनिज्म आएगा इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म आएगा वो मैं तुहानूं नैक्सट लैक्चर के करावांगा यदि थ्योरेटिकल वर्क है इन्हूं थोड़ा जिहा गो थ्रू होवो इहदे थोड़ा जिहा बुक तो भी तुसीं इहदा लै सकदे हो थोड़ी मदद लै सकदे हो मदद लैके ते लैसन जिहड़ा ओह नाल नाल तैयार करो ठीक है जी इस लैक्चर नूं जिहड़ा शेयर करो सबसक्राइब करो लाइक करो ठीक है जी अज दी बस इन्ना ही थैंक यू वेरी मच।